Hello everyone. I hope you all are doing great. So today I will be starting with the daily current affairs, starting from 13th of May 2025. Okay. सबसे पहले जो न्यूज़ है वो ये कि जस्टिस सूर्यकांत इज अपॉइंटेड एज नालसा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ये नालसा क्या है? नालसा इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ओके। सो जस्टिस सूर्यकांत को नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया है बाय हुम? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज श्रीमती Draupadi Murmu. Okay, and the appointment was made under the provisions of Legal Services Authorities Act 1987. And he will be taking over the position from Justice B.R. Gavai, who will be assuming office as the 52nd Chief Justice of India on 14th May. तो इसके पहले जस्टिस बी आर गवई was the executive chairman of NALSA, but now he will be appointed as the 52nd Chief Justice of India. तो वो इंडिया के चीफ जस्टिस नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो ये जो वेकेंट पोजीशन है इसको फिल करने के लिए जस्टिस सूर्यकांत को अपॉइंट किया गया है। ओके। नालसा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है दैट 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये हेडक्वार्टर दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, एंड इट एम्स टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू the marginalized people, to the poor and weaker section of the society. It focuses on lok adalats, legal awareness, and legal aid camps, and it is mandated by Article 39A of the Directive Principles of State Policy, which is in the Indian Constitution, which ensures equal justice for everyone. Okay. So irrespective of your financial position, you are authorized to get लीगल जस्टिस, एंड नालसा उसी पे काम करता है। ओके। एंड इनका जो टेन्योर है वो 23 नवंबर 2025 तक कंटिन्यू रहेगा। ओके। क्योंकि चांसेस आर दैट ही विल ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस आफ्टर बी आर गवई। ऑल राइट। सो एनीवेज एज ऑफ नाउ he is appointed as the नालसा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। जस्टिस सूर्यकांत इज अपॉइंटेड एज नालसा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। और इनके पहले जो जस्टिस बी आर गवई थे, नाउ ही विल बी अज्यूमिंग द ऑफिस एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 14th May 2025। ओके। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडिया बैग 7 मेडल्स एट आर्करी वर्ल्ड कप 2025 इन शंघाई, इंक्लूडिंग 2 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो इसमें ये नाम इम्पोर्टेंट है। पार्थ सुशांत सलूंके, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है इन मेंस इंडिविजुअल रिकर्व। दीपिका कुमारी को भी ब्रॉन्ज मिला है इन वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व। मधुरा धमनगांवकर, she clinched a gold medal in the women's compound event, and Indian men's trio था Abhishek Verma, Rishabh Yadav and Ojas Deotaleka. They finished at the top of the podium. तो इनको भी गोल्ड मिला है। ओके। एंड देन वी हैव ज्योति सुरेखा विनम, Chikita Taniparthi, and Madhura, who have grabbed silver in women's compound team. Madhura and Abhishek also won a bronze in the compound mixed team event, and Rishabh also won a bronze medal in the men's compound event. ठीक है। फिर इसके बाद विराट कोहली ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट एट द एज ऑफ 36। बस कुछ नंबर्स हैं जो कि आप एक बार देख लीजिए। 14 साल का इनका टेस्ट करियर रहा। ही प्लेड 123 टेस्ट, स्कोरिंग 9,230 रन एट एन एवरेज ऑफ 46.85। इट इंक्लूड्स 30 सेंचुरीज। ओके। और इनका लास्ट टेस्ट मैच कहाँ था? वो सिडनी में था ड्यूरिंग द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अर्लियर इन 2025। ठीक है। इसके बाद आता है C dot and Synergy Quantum partner to develop quantum key distribution for drones. So, to boost India's capabilities in quantum encrypted communication, the Center for Development of Telematics, that is CDOT. Okay, CDOT का full form क्या है? Center for Development of Telematics. It has signed a strategic agreement with Synergy Quantum India to co-develop drone-based quantum key distribution systems. So basically, the goal is to co-develop quantum key distribution technology designed for drone-based systems. Okay. And they both the organizations will jointly pursue research funding. This will help in enhancing the security of data transmissions also. और तो इसलिए ये MOU साइन किया गया है।
फिर आता है द नेक्स्ट इज़ Delhi's Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena, CM Rekha Gupta, lay foundation stone for 500 kilowatt solar power plant at the Vidhan Sabha, that is the Legislative Assembly of Delhi. ओके, तो ये क्यों किया गया है? ये सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए और एक क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली के इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें करी गई हैं। सो इट शोज़ अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड yeah, so this project, it basically it talks about that how committed the government is when we talk about renewable energy or environment sustainability. ठीक है। अब लास्ट न्यूज़ जो आज की है वो ये कि मालदीव्स एक्सप्रेसेस ग्रैटिट्यूड टू इंडिया फॉर ऑफरिंग $50 मिलियन इंटरेस्ट फ्री ट्रेजरी बिल। और ये अब्दुल्ला खलील जो कि वहाँ के, जो कि मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है जिसमें कि वो थैंक यू कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि उन्होंने ये फाइनेंशियल सपोर्ट मालदीव्स को प्रोवाइड किया है। ओके, सो मालदीव्स इज़ अ की मैरीटाइम नेबर ऑफ इंडिया एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर इन इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन है महासागर। महासागर का फुल फॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट mutual and holistic advancement for security and growth across regions. So India was among the first to recognize Maldives as an independent country in 1965. तो हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे बने रहें, तो इस चीज़ को और कंटिन्यू करने के लिए इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू Maldives. Okay, so that is it for today. I hope it was beneficial to you. Thank you. I'm keeping it till here for today. Thank you.